بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم انار شاہ صاحب کے دولت خانے پہ ہیں، انہوں نے ہماری دعوت کی ہوئی ہے اور اس دعوت کا مین مقصد یہ ہے کہ وہ ٹرانسپورٹ کمپنی انہوں نے شروع کیا سویڈن کے اندر، اور کام انہوں نے شروع کیا جا کے ڈنمارک کے اندر ٹرانسپورٹ کمپنی کے ساتھ۔ تو ان سے تھوڑی سی معلومات بھی لینی تھی، ان کے ساتھ کھانا بھی کھانا تھا اور ان کو مبارکباد بھی دینی تھی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے آپ کو مبارک ہو سرکار، آپ نے شروع کیا کام۔ تھینک یو۔ تو کیا چیز جس نے آپ کو اپیل کیا ہے کہ آپ ٹرانسپورٹ کی کمپنی شروع کر دیں، بجائے کہ آپ ایک اچھی جاب کر رہے تھے، اچھی سیلری تھی آپ کی یہاں پہ سویڈن کے اندر، تو وہ چھوڑ کے آپ نے جاب سے ریزائن کر کے ٹرانسپورٹ کی کمپنی کی شروع کی؟ ٹرانسپورٹ بھجن بڑا اسکوپ ہے ٹرانسپورٹ میں آج کل کیا آنے والے جو ٹرینڈ چل رہا ہے نا، یہ گھر سے کرونا کی وجہ سے گھر سے لوگوں نے بکنگ کرائی چیزوں کی، اور ہر چیز آپ کے فنگر ٹپس پہ آ گئی ہے۔ اس میں لوگ واپس نہیں آئیں گے، بے شک کرونا ریسٹرکشن ختم بھی ہو جائیں، لوگوں کے لیے ایزی ہے، بجائے آپ گھر سے گاڑی نکالنے جائیں، پارکنگ ڈھونڈیں، موسم آگے پیچھے، جس طرح آج کل طوفان چل رہا ہے، تو یہ زیادہ کنوینئنٹ ہے لوگوں کے لیے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وقت کی ڈیمانڈ تھی کہ اگر کوئی بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو میری نظر میں بیسٹ اس وقت ٹرانسپورٹ کا تھا، تو اللہ کا نام لے کے شروع کرا۔ ڈنمارک میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ٹرانسپورٹ کام شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے؟ ایک تو ہے جی کہ آپ نے جو کمپنی رجسٹرڈ کروانی ہے نا، جس طرح میں نے کی ہے، میری سویڈش بیس کمپنی ہے، تو اس کا میں نے ایک برانچ ادھر رجسٹرڈ کروائی ہے۔ یہاں پہ ایک ادارہ ہے اورسن ڈائریکٹ کے نام، وہاں پہ میں نے اپنا VAT جو ہے وہ رجسٹر کروایا ادھر، باقی ساری ڈکلیریشن میری ادھر ہی ہوگی، تو اور کوئی خاص چیز نہیں ہے ادھر جو ایکسٹرا ہے، کیونکہ اسکینڈینیویا کا آلموسٹ سیم ہی سسٹم ہے، یا جو فی الحال مجھے پتہ ہے، آگے جا کے کوئی مشکل آئے یا کوئی پریشانی ہو وہ علیحدہ بات ہے۔ فی الحال جتنی انفارمیشن اکٹھی کی تھی کام شروع کرنے سے پہلے اور کام شروع کرنے کے بعد، وہ یہی تھا کہ بس اپنے وہ VAT جو ہے نا وہ رجسٹرڈ کروا دیں ادھر، تو گاڑیاں جو ہیں وہ ڈینش ہی چلیں گی، سویڈش گاڑیاں نہیں کام کر سکتی ادھر۔ تو بس یہ چیزیں فی الحال مطلب کچھ مسئلہ نہیں نظر آ رہا، یعنی کہ کمپنی آپ کھلوا کے ڈائریکٹ کام شروع کر سکتے ہیں۔ ہاں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ سویڈن میں کوئی بلڈنگ وغیرہ یا کوئی پڑھائی کوئی سویڈن میں باقاعدہ کورسز ہیں، آپ کی کمپنی جو ہے وہ سویڈش بیس ہے اور کام آپ ادھر کر رہے ہیں، جی تو وہ آپ کے اوپر اپلائی ہوگا۔ ہاں جی، وہ جو بلڈنگ ہے، جو اسپیشل بلڈنگ ہے، اس کا کیا نام ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ YKB کہتے ہیں، ارکے کمپیٹنس بیبیز، وہ کرنی ہوتی ہیں۔ تو اس کے بعد وہ ایک قسم کا آپ کا سرٹیفکیٹ ہے آپ کو روڈ پہ آنے کے لیے، یہ جو گاڑیاں چلانی ہے، آپ نے کام شام کرنا ہے نا، اس کے لیے وہ آپ پوری کمپنی وہ جو چلائیں گے۔ فی الحال چھوٹی گاڑی ہیں، بعد میں بڑی آتی ہیں، پر مطلب ہر قسم کی ٹرانسپورٹ اور لاجسٹک جو ہے نا وہ اس میں آ جاتی ہے۔ تو اس کے لیے یہ آپ کسی ایک کمپنی کے ساتھ مشروط ہے کہ آپ کوئی کام کریں گے تو وہ اس کمپنی کے ساتھ آپ باؤنڈ ہو جائیں گے اگر آپ اس سے معاہدہ کرتے ہیں تو، یا آپ کے لیے کوئی باؤنڈنس نہیں ہے؟ نہیں، ڈنمارک میں کہیں بھی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ٹائمنگ کا فرق ہوتا ہے نا۔ اب میرے اس وقت 3 جگہ پہ کانٹریکٹس ہیں، اگر تو مجھے ٹائم سوٹ کرتا ہے کہ میری ایک ہی گاڑی صبح کے ٹائم، مثال میرا پہلا جو روٹ ہے وہ شروع ہوتا ہے صبح 5 بجے، وہ 10 بجے ختم ہو جاتا ہے، اگلی کمپنی مجھے کہہ رہی ہے کہ آپ 10 بجے آ جاؤ، تو پھر مجھے زیادہ گاڑیاں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مطلب ایک گاڑی میں ایک کمپنی کے ساتھ باؤنڈ نہیں کروں گا۔ لیکن مسئلہ اس وقت آتا ہے جب 5 بجے ایک جگہ شروع کر رہا ہوں، 10 بجے میں نے ختم کرنا ہے، لیکن دوسری کمپنی جو ہے، کیونکہ میرے مختلف کانٹریکٹ ہیں، دوسری کمپنی مجھے کہہ رہی ہے کہ تم نے 6 بجے گاڑی بھیجنی ہے ہمارے ادھر، تو آف کورس مجھے گاڑی نہیں لینی پڑے گی، تو ورنہ وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بس باؤنڈ ہو گئی ہے گاڑی۔ اور اس میں پروموشن پیریڈ ہے، یعنی کہ اگر آپ کسی کے ساتھ کانٹریکٹ کرتے ہیں اس کانٹریکٹ کی کوئی میعاد ہے یا وہ ان لمیٹیڈ ہے، یہ جب تک آپ کوئی مسٹیک نہیں؟ ہاں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس کمپنی کے ساتھ۔ اب میرا ایک کمپنی کے ساتھ ہے وہ میرا ان لمیٹیڈ، وہ 365 دن کا کیا ہوا ہے مجھے، جو کہ اگلے سال جا کے رینیو ہو جائے۔ لیکن 2 کمپنیاں اور ہیں، انہوں نے 3 مہینے کا ٹائم لیا، وہ 3 مہینے میرا کام دیکھیں گے،
अगर तो उन्हें पता चलता है कि ठीक है जी मैं को मसला नहीं कर रहा, मेरा सारा कुछ सही है, तो 3 महीने बाद वो मेरे साथ 365 दिन का करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इसमें हमेशा 365 दिन ही होते हैं, या मतलब हफ्ता इतवार छुट्टी है अगर किसी की, तो वो पर आवर्स के हिसाब से या पर वो जैसे यहाँ पे स्वीडन में जो चॉइस आप भी करते हैं कि वो पर पैकेट के या पर डिलीवरी के हिसाब से नहीं है डेनमार्क में ये भी है सिस्टम, लेकिन मैं उस तरफ नहीं गया क्योंकि वो स्ट्रेस वाला काम होता है। तो आगे से जो एम्प्लॉई वगैरह आप रखेंगे जी, उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, उनकी जो मिस्टेक्स हैं और जो उनकी वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप फेस करेंगे, कंपनी फेस करेंगे? कंपनी ऑफ कोर्स मैं ही करूँगा, मतलब कंपनी करेगी तो मैं ही कंपनी मैं जिस कंपनी से आपका कॉन्टैक्ट है, हाँ जी, वो उसमें आपको अगर किसी किस्म की वार्निंग इशू करते हैं तो उसका इफेक्ट से आपके ऊपर ही पड़ेगा। नहीं, जब मेरे पे आएगा तो ऑफ कोर्स मैं आगे ड्राइवर को दूंगा। और उसमें किस लेवल की जो है मिस्टेक जो है वो काबिल बर्दाश्त है, और किस लेवल का जो है, फर्ज करें आप एक्सीडेंट करते हैं, आपके पास हैवी इंश्योरेंस है वहाँ की सारा, तो उसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने के इम्कान कितने हैं? एक्सीडेंट में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल तो नहीं होते खैर, क्योंकि एक्सीडेंट तो किसी का भी कहीं भी हो सकता है। असल जो गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होते हैं कि ड्राइवर गया नहीं है, काम पे नहीं गया, आधा घंटा लेट गया है जहाँ पे डिलीवरी देनी, क्योंकि हमारा घरों वाली डिलीवरियाँ नहीं है, एक्सप्रेस डिलीवरी तो हमारी दुकानों पे है, फैक्ट्रियों में है, एयरपोर्ट पे है, तो वो बंदा गया ही नहीं है, या पता है कि यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आधा घंटा लगता है क्योंकि वो GPS होते हैं ना साथ, लेकिन मैं या मेरा ड्राइवर हम 1 घंटे के बाद पहुंचे हैं बगैर किसी रीज़न के, ट्रैफिक में फंस गए, वो चीज़ है, गाड़ी ख़राब होगी या कुछ इस तरह। एक बंदा है एक गरीब ऊपर से बदतमीज़, उस सूरत में फिर वो स्वीडन में जो आपने कंपनी खोली है उसके लिए ट्रेनिंग बिल्डिंग वगैरह ज़रूरी है, जबकि डेनमार्क में ये नहीं है, ये ठीक है जी। तो फिर आपने इसको वहाँ पे क्यों नहीं खोली, यहाँ क्यों बेस किया आपने? मसला ये था कि जब मैं फैसला किया था कंपनी चलाने का, उस वक्त मैंने डेनमार्क का नहीं सोचा, ये स्वीडन में शुरू की थी, लेकिन क्योंकि स्वीडन में अपॉर्चुनिटीज़ कम है या मालूमों में कम है कह सकते हैं, तो नए बंदे के सिस्टम में अंदर आने के लिए बड़ा टाइम चाहिए, रेफरेंसेस चाहिए, ये करो वो करो। इसकी निस्बत डेनमार्क की जो मार्केट है वो बहुत बड़ी है, ऊपर से रेफरेंस मिल गया, फिर जो पहला कॉन्ट्रैक्ट मिला डेनमार्क में, तो फिर मैंने स्वीडन को फ़िलहाल साइड पे कर दिया, सारा फोकस मेरा डेनमार्क पे हो गया। तो अदनान साहब ये बताइए कि जैसा भी जिक्र हो रहा था कि आपने जॉब अपनी एक अच्छी खासी चलती हुई जॉब छोड़कर और इस बिज़नेस में आए, तो ट्रांसपोर्टेशन ही क्यों, और बहुत सारे बिजनेस है जी। स्वीडन में लोग आते हैं तो अमूमन कोई कबाब की दुकान खोल लेते हैं अरब्स, कोई ग्रोसरी शॉप लगा लेते हैं, टैक्सी कंपनी खोल लेते हैं, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आने का क्या रीज़न है? एक तो ये कि ये मेरा पैशन था, जब भी मैंने सोचा कि मैं कभी अगर करूँगा, जैसे ये मेरे यार दोस्त हैं पुराने जानते हैं मुझे कि जब भी कहते थे कोई अपना काम स्टार्ट करूँगा, हमेशा मैं कहता था कि मैं ट्रांसपोर्ट का ही करूँगा। उसका रीज़न ये है कि इन्वेस्टमेंट थोड़ी है, रिस्क फैक्टर थोड़ा है, और काम अच्छा चल जाता है। अगर मैं कोई कबाब शॉप बनाता हूँ या कोई रेस्टोरेंट कोई दुकान, उसमें इन्वेस्टमेंट है ठीक ठाक, 3 महीने 4 महीने नहीं चलता, जब मैं बंद करूँगा अच्छा खासा पैसा लॉस होता है उस पर। ट्रांसपोर्ट का ये फ़ायदा है कि गाड़ी ले लो लीज़ पे या रेंट पे, सबसे अच्छा जो है ना वो रेंट है, कि लीज़ पे फिर भी 3-4 साल का बंदा बाउंड होता है, रेंट पे लो पर मंथ के हिसाब से 1 महीने में आपको रिजल्ट नज़र आना शुरू हो जाता है कि कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो। थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट है ना, मतलब आप बड़ी अमाउंट नहीं फंसा रहे हो। ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका लॉस होगा वो होगा जो आपने 10-15 हज़ार 20 हज़ार का डीजल डलवा दिया गाड़ी में, बाकी महीना जो गुजर गया आपने आखिर कुछ ना कुछ तो अर्न किया है ना, सारा लॉस तो नहीं जाएगा। अब ये फ़ायदा किसी और जगह पे नहीं है कि मैं दुकान ले लूँ, मैं बेचूँगा, एक तो कॉन्ट्रैक्ट दुकान का होगा साल का, फिर उसको मैं ख़त्म करूँ, वहाँ पे लॉस, जो माल ले लिया वो लॉस। ट्रांसपोर्ट में ये है कि एक गाड़ी ले लो रेंट पे, मतलब
50,000 नुकसान है, और ये इतना नुकसान है कि बंदा सर्वाइव कर जाता है। इस वजह से मेरा ये ट्रांसपोर्ट था। आपका जो ये जवाब है बड़ा अच्छा है, लेकिन ये सुन के तो ऐसा लग रहा है कि हर किसी को इस बिजनेस में बड़े आसानी से कूदने का मौका मिल सकता है। तो क्या आप अपने लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं? नहीं, कंपटीशन हर बंदे ने, रिस्क जो खुदा की ज़ात ने देना है, बल्कि मैं तो चाहूँगा कि हमारी कम्युनिटी इस फील्ड में आए। माशाल्लाह। कि वो, मैं अपने किसी दोस्त को नहीं बताऊँगा तो कोई अरबी, तुर्की, कोई कुर्दी, कोई आ जाएगा। माशाल्लाह। तो जो अपने ज़्यादा लोग आएंगे उनके साथ बंदा फिर डील कर लेता है। मेरे पास किसी एक जगह पे लेट्स सपोज 10 रूट हैं, लेकिन मैं उस कंपनी को छोड़ के किसी और में ट्राई करना चाहता हूँ, उसके पास, आपके पास 5 रूट हैं, तो वो गिव एंड टेक होता है कि आप मुझे रूट दे दो, मुझसे ले लो, तो मेरी गाड़ी इधर भी चले उधर भी चले। बहुत अच्छी सोच है आपकी, इस तरह कोलैबोरेशन से बड़ा अच्छा काम हो सकता है। अब एक सीरियस सवाल एक और कर लेता हूँ कि अच्छा, ये पहले नॉन सीरियस थे सारे। पिछले दिनों जो है वो ये अखबार में हमने देखा था कि यहाँ की मीडिया पर स्टॉकहोम में फूडोरा की डिलीवरी जो है वो ड्रोन्स के थ्रू हो रही है जी। या ऑटो पायलट कार्स या बाइक्स के थ्रू हो रही है। इन चीज़ों से आपकी सेहत पे, आपके कारोबार की सेहत पे आपको क्या असरात नज़र आते हैं आने वाले चंद सालों में? वो तो है, अभी तो चलो फिलहाल तो हम इस फील्ड में, इसी फील्ड में नहीं है, लेकिन किसी भी फील्ड में आपने अगर सर्वाइव करना है तो वक्त के साथ साथ आपने चेंजिंग करनी है। कि ड्रोन या दूसरे तीसरे, ये सिटी के अंदर तो ये पॉसिबल है चीज़ें, लेकिन यहाँ से आपको एक ट्रक लेके जाना है स्टाफ को, वो ड्रोन नहीं लेके जाएगा आपका, या कोई इलेक्ट्रिक कार नहीं जाएगी, वो आपको मैन पावर ही चाहिए। और वैसे भी वक्त के साथ साथ अपने, ये नोकिया कितना बड़ा नाम था, वक्त के साथ नहीं चेंज हुए, आज ख़त्म हो गए। जब तक हम चेंज कर सकते हैं अपने आप को, करेंगे, नहीं करेंगे कोई और फील्ड देख लें। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारक पेश करता हूँ कि आपने एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप, जो हम जैसे लोगों के लिए जो यहाँ पे नए आए हैं उनके लिए बड़ी हौसला अफजा ये स्टेप्स हैं। जब भी कोई अपनी कम्युनिटी का कोई दोस्त, कोई भाई इस तरह का स्टेप लेता है तो वो बेसिकली हम जैसे लोगों के लिए एक रोशन मिसाल है। तो मेरा सवाल ये है कि आपने एक बड़ी अच्छी जॉब, जब मैंने सुना आपकी एक अच्छी हैंडसम अमाउंट और बड़ी अच्छी जॉब थी आपकी, वो इतना बड़ा आपने रिस्क लिया, एक बिजनेस को भी आपने स्टार्ट लिया, तो वो कोई उस पर रोशनी डालें जो लोग ये काम शुरू करना चाहते हैं या जिनके जो अभी उस कंफर्टेबल जोन से नहीं निकलना चाहते, तो आप निकले उससे, वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करें। असल में जो साहब इस सवाल का जवाब आपके सामने देना तो वो सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है। लेकिन ये बात सही है, जो बंदे अपनी जॉब भी रखते हैं साथ में बिजनेस भी, वो पूरा फोकस नहीं कर सकते। मैं चाह रहा था कि मैं कश्तियाँ जला दूँ, कि मैं पूरा फोकस रख सकूँ इस पर। जो बंदे अपनी वो एबिलिटी भी है, जो बंदे 2 चीज़ें मैनेज कर सकते हैं तो वो उस तक करें। लेकिन मुझे ये था कि मैं अगर सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करूँगा ना तो वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे आपको। तो अब क्योंकि वापसी का रास्ता कोई नहीं, अब जो एफर्ट्स हैं वो डबल हो गई। हाँ, और अल्लाह ताला के साथ बरकत भी दे इंशाल्लाह। स्वीडन में कंपनी खोली है तो उसका तरीकाकार क्या, ट्रांसपोर्ट की कंपनी स्वीडन में खोलने का बेसिक से लेकर आखिर तक क्या तरीका है उसमें? स्वीडन में कंपनी जो है वो तो जिस तरह बाकी सारी कंपनियाँ खुलती हैं, कहते वर्कर और आगे पीछे प्रोसेस सारा वही है। सिर्फ एक चीज़ इसमें जो एडिशनल है वो ये है कि YKB, इरके कॉम्पिटेंस बेवीज़ के नाम से एक चीज़ होती है, सर्टिफिकेट, कि आप रोड पे इस तरह की लोडिंग अनलोडिंग वाली गाड़ियाँ या मतलब इस तरह गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट का जो है ना वो सर्टिफिकेशन है कि आपको पता होगा कि आपने किस तरह उसको लोड करना है, किस तरह अनलोड करना है। जो मुल्क से बाहर चीज़ें जाती हैं उनकी कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन है, तो जो मुल्क के अंदर हैं उसकी क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। ये चीज़ करने के लिए जो बंदा ख़ास तौर पर ट्रांसपोर्ट की शुरू करना चाहता है ना, उसके लिए यहाँ पे इन्होंने ये ज़रूरी रखा हुआ है। अब वो नहीं करेंगे तो आपकी कंपनी जो है ना वो ट्रांसपोर्ट की कंपनी नहीं खोल सकती। हाँ जी, ट्रांसपोर्ट YKB खोलने के लिए किसके पास जाना होगा और कितनी फीस है इसकी? डिपेंड करता है। अगर कोई बंदे तो ऑनलाइन इधर उधर से लेके इंफॉर्मेशन वगैरह या थ्योरी को इस तरह के लेके वो कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम टेकिंग है कि आपने जिस तरह B का श्योर कोड करते हैं लाइसेंस, उसी तरह कि आप घर पे भी तैयारी कर सकते हैं थ्योरी की, आप
किसी भी ट्रैफिक स्कूल में भी जा सकते हैं। मोस्टली ट्रैफिक स्कूल वो ये वाई के भी करवाते हैं, उनके पास जाएं, वो थ्योरी पढ़ें उधर, उसके बाद ये जो ट्रैफिक वाले हैं बिल्कुल वही प्रोसेस है जिस तरह आपने बी का लाइसेंस करना है कि 2 टेस्ट होते हैं इसके, तो उनमें टोटल 26 नंबर लेने होते हैं। फिर आप कितने में से? ये अच्छा सवाल है, मेरा ख्याल है 30 या 32 है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं रहा। तो वो जब आपका सर्टिफिकेट आ जाता है, उसके बाद आपने किसी अच्छे रिवीज़र के साथ, रजिस्टर्ड रिवीज़र से अपनी इकोनॉमी की वो बनवा के सारी रिपोर्ट वो भेजनी होती है ट्रांसपोर्ट से लाइसेंस वाले को। वो चेक कहते हैं कि आपके पास इतने वो सोर्सेज हैं, पैसे हैं कि आपने कंपनी शुरू कर कोई नुकसान होता है या मतलब किसी कंपनी का, तो आप पूरा कर सकते हैं या सारा कुछ मैनेज कर सकते हैं। फिर वहाँ पे उसकी फ़ीस है, टोटल 20 से 25 हज़ार का खर्चा है जी। कंपनी की शुरू से लेके सर्टिफिकेट हासिल करने का? कंपनी की नहीं, सिर्फ वाई के बी के 25,000 तक तकरीबन 25 हज़ार तक। बहुत शुक्रिया शादी, थैंक यू।